پاکستان کو اس سال بدترین سیلابی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا. اب آہستہ آہستہ جو پانی اترتا جا رہا ہے, ان تمام علاقوں کی ریہیبلیٹیشن بھی ہونی ہے, اور پھر وہاں پر جو لوگوں کو یہ بھی انشور کرنا ہے کہ دوبارہ اگلے سیلابی ریلے کے اندر ایٹ لیسٹ یہ دریا کے گزرگاہوں کے اندر جگہیں لوگوں کے رہنے کی نہ بنی ہوں. بہت سارا ہنگامی بنیادوں پر کام کرنا ضروری ہے. ابھی اس وقت کیا صورتحال ان علاقوں کی کوئک سا راؤنڈ اپ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. سیلاب سے ہونے والے جو نقصانات ہیں, اقتصادی امور ڈویژن کے مطابق سیلاب سے 1000 سے زائد اموات ہوئی ہیں, 1100 افراد زخمی ہوئے ہیں. خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ 500 سے زائد اموات رپورٹ ہوئی ہیں. سیلاب سے زراعت, دیہی علاقوں کو زیادہ نقصان پنجاب میں ہوا. گلگت بلتستان کے دشوار گزار علاقوں میں سڑکیں اور پل تباہ ہوئے. آزاد کشمیر میں بھی بنیادی ڈھانچے اور رہائشی علاقوں کو نقصان پہنچا ہے. ملک بھر میں 12,500 سے زائد مکانات اور 240 سے زیادہ پل تباہ ہوئے ہیں. سڑکوں, اسکولوں اور اسپتالوں سمیت انفراسٹرکچر کی تباہی اس کے علاوہ ہے. وزارت منصوبہ بندی نے 700 ارب روپے سے زائد نقصان کا ابتدائی تخمینہ لگایا ہے. دوسری جانب پی ڈی ایم میں پنجاب کے سروے کے مطابق اب تک سروے ٹیموں نے 53,985 ایکڑ سیلاب متاثرہ اراضی کی نشاندہی کی ہے. سیلاب سے متاثرہ 24,246 مکانات کا ڈیٹا بھی شامل کیا گیا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت ہمارے نمائندگان. رانا فاروق صاحب ہیں جو ملتان سے ہمارے ساتھ ہیں, شوکت علی صاحب ہیں نمائندہ اے وائی نیوز بنیر, شہزاد عالم صاحب ہیں نمائندہ اے وائی نیوز سوات. بہت شکریہ آپ تینوں کا, کیونکہ اب آہستہ آہستہ سیلاب نیوز سائیکل سے باہر نکلتا جا رہا ہے, لیکن لوگوں کی مشکلات ابھی بھی ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم جانیں کہ اس وقت صورتحال کیا ہے, کن چیزوں کی ضرورت ہے, اور خاص طور پہ جو اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں وہاں پہ ہیں وہ کیا ہیں. شہزاد عالم صاحب, آپ سے آغاز کرتے ہیں. اس وقت سوات کے اندر ریہیبلیٹیشن کا کام کس حد تک پہنچا ہے, کن کن چیزوں کی ضرورت ہے, ہنگامی طور پہ فی الحال حکومت کی ترجیحات کیا ہونی چاہیے ہیں, لوگ کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ جی بالکل شکریہ ماریا بی. جس طرح آپ نے کہا تو سوات میں 15 اگست کو جو سیلاب آیا تھا, اس کے بعد جو صورتحال اب تک تقریباً 50 روز گزرنے کے بعد سوات میں کافی حد تک بہتری آئی ہے, کیونکہ منگورہ شہر کو حالیہ سیلاب نے کافی افیکٹ کیا تھا, اور یہاں پر تقریباً 20 اموات ہوئی تھی. 55 گھر مکمل طور پر تباہ ہوئے تھے, اور 496 گھر جو ہے وہ جزوی طور پر بحال ہو چکے تھے اور تباہ ہوئے تھے, جس کے لیے موجودہ حکومت نے اب تک تقریباً 1 ارب روپے جو متاثرین ہیں ان میں تقسیم کیے گئے, جبکہ جو متاثرین سیلاب ہے ان میں 8,695 جو متاثرین ہیں ان میں فوڈ ایٹم, جبکہ 4,000 کے قریب جو متاثرین ہیں ان میں نان فوڈ ایٹم تقسیم کیے گئے. اور اب جب میری بات ہوئی ڈپٹی کمشنر سوات سلیم جان سے, تو ان کے مطابق بحالی کے کام تقریباً مکمل ہو چکے ہیں, لیکن جو مکانات ہیں جو نواحی علاقوں میں ہے تو ان کی بحالی کے لیے اب تک کوئی انتظامات اس وجہ سے نہیں اٹھائے گئے کہ وہ مکانات تباہ حال پڑے ہوئے. اور منگلور کے بعد علاقے کی بات کی جائے تو وہاں پر 8 مکانات جو تباہ ہوئے, اب تک وہ لوگ بہار مددگار کھلے آسمان تلے پڑے ہوئے. لیکن منگورہ شہر میں کافی حد تک جو بحالی کے کام تھے وہ مکمل ہو چکے ہیں, لیکن جو نواحی اضلاع ہے اس میں اب تک جو متاثر ہے. اس وقت میں اگر بات کروں تو گزشتہ 3 روز سے سوات اور منگورہ شہر کے نواحی علاقوں میں بارش اور برف باری کا سلسلہ جاری ہے, جس کے باعث جو متاثرین سیلاب ہے ان کی مشکلات بڑھ گئے. اور ان کا کہنا ہے کہ رات کو اگر بارش ہوتی ہے تو ہم ڈر کے مارے سو نہیں سکتے کہ جو ندی نالے ہے, جو سیلابی صورتحال ہے وہ دوبارہ پیدا نہ ہو جائے, تو اس کی وجہ سے جو متاثرین سیلاب ہے ان میں کافی تشویش پائی جا رہی ہے. ماریا صحیح. شوکت علی صاحب, بنیر کے اندر جو ہے وہ سب سے زیادہ ہم نے دیکھا کہ وہاں پر بڑی تباہی آئی ہے, جس طرح کے پورے جو پتھروں کے تودے آ کر گر گئے. ادھر کیا صورتحال ہے, اور 3-4 بڑے ایسے کیا مطالبات ہیں وہاں کے لوگوں کے, 3-4 ایسی بڑی کون سی چیزیں ہیں جس پہ حکومت کو فوری طور پہ اس وقت توجہ دینی چاہیے بنیر میں خاص طور پہ؟ جی بالکل, یہاں بنیر میں جو 15 اگست کو تباہ کن سیلاب آئی ہوئی تھی اس کی تقریباً 50 دن مکمل ہو گئے ہیں. یہاں پر 256 افراد شہید ہو گئے تھے, جس میں 1100 سے زیادہ افراد زخمی ہوئے تھے. 55,000 ایکڑ زمین تباہ ہو گئی, جس میں کھڑی فصلیں بھی تباہ ہو گئی تھے. 40 ماربل فیکٹریاں تباہ ہو گئے ہیں. اس طرح کے سینکڑوں گاڑیاں بہہ گئی پانی میں. یہاں تک خاص کر یہ مطالبات ہے کہ جو ملبہ ابھی تک پڑا ہے, جو ندیوں میں ملبہ پڑا ہے, جہاں پر سیلاب گزری ہے وہیں تک ابھی تک وہ ملبہ پڑا ہوا ہے, جس کے ہٹانے کا کام ابھی شروع نہیں ہوا ہے. جو علاقے ہیں قادر نگر, بچھونے, اس طرح کوٹ کا جو علاقہ ہے گوکر, وہاں پر سڑکوں کی بحالی بھی نہیں ہوئی ہے. قادر نگر میں خاص یہ بات نوٹ کی گئی ہے کہ بجلی کی ابھی تک بحالی نہیں ہوئی ہے. یہاں پر انتظامیہ اور حکومت تو کوششیں کر رہے ہیں, مگر یہ ملبہ اتنا بڑا پڑا ہوا ہے کہ اس کے ہٹانے میں
बहुत देर लगेगी। अभी जो आज बारिश हुई है इस पे सर्दी की शिद्दत में थोड़ा सा इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से मुतासरीन इलाका में जो मजीद मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। खासकर यहाँ पर जो दीगर इलाके हैं, चकरदे का गनशाल का इलाका है, तो यहाँ पर खासकर तबी इमदाद की जरूरत है। जो निजी इदारे हैं वो तो यहाँ मेडिकल कैंप लगा चुके हैं, गवर्नमेंट भी कर रहे हैं, मगर तभी यहाँ पर अमराज में इजाफा होता जा रहा है, लोग नफ्सियाती अमराज के शिकार होते जा रहे हैं। डेंगू का खासकर यहाँ सैकड़ों मरीज मुतासर इलाकों में मुतासर हुए हैं। आंखों की बीमारियां हैं, मैदे की बीमारियां हैं और दीगर इस तरह की बीमारियां ज्यादा होता जा रहा है। खासकर लोगों में हिरास है, जो भी मामूली सा चमक के साथ बारिश होते हैं या आसमानी जो बिजली गिरती है, तो यहाँ जो आसमान में होते हैं रोशनी, तो बहुत लोगों में हो हिरास है। अभी तक लोग जो मुतासर इलाके हैं बिशोरे का दरनगर, यहाँ इस इलाकों में लोग अपने रिश्तेदारों के यहाँ रहते हैं। दिन के वक्त वो अपने घरों में आ जाते हैं, जो गाय उनकी तबाह हो गए हैं, जो मलबे पड़े हैं उसके ऊपर वो तो बैठते थे बेचारे, मगर रात को अपने मतलब रिश्तेदारों के पास जाते हैं। तो ये सूरत हाल है पानी की। इस तरह और खाने की खोरोनोश की जो अशिया हैं उनकी कीमतों के बारे में बताइए, उनके अवेलेबिलिटी के बारे में बताइए। क्या वो आराम से वहाँ पे किसी चीज की किल्लत है? खाने पीने की अशिया की अगर हम बात करें, खाने पीने की अशिया तकरीबन इतना यहाँ मसला नहीं है। तो सिर्फ वो जो यहाँ पर जो सबसे बड़ा बाजार है पाचा बाजार, जो पुणे का सबसे बड़ा तारीखी बाजार भी है, यहाँ पर 2000 से ज्यादा दुकानें जो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके थे। तो उन दुकानदारों में अंदाजी तौर पर जो चिक्की तकसीम की है 5-5 रुपए की, 5-5 लाख रुपए की जो चिक तकसीम की है, तो वो बैंक में जब वो जाते हैं तो इसमें अभी तक पैसे नहीं होते हैं, जिसकी वजह से लोगों में शदीद मुश्किलात है। और वो लोग कल उसकी मुजाहरा भी हो चुका था। इस तरह की जो घर तबाह हो गए, 200 घर जो जिसमें नुकसान हो गया है, और साथ साथ इसमें 500 से ज्यादा जो घर है मुकम्मल तौर पर सफेद से मिट गई है। तो लोगों का ये मुतालिबात है कि जो उनको चेक दी गई है उस चेक पे पैसे डालना चाहिए, साथ साथ ये जो मलबा हटाने का काम है इसको सख्त मुश्किलात का सामने है। जी राना फारूक साहब, पंजाब के अंदर तो सबसे ज्यादा तबाही मची है, इस वक्त आप मुल्तान में मौजूद है। सबसे पहले बताइए कि वहां पर अभी तक अपडेट क्या है? क्या पानी तमाम इलाकों से निकल चुका है? पहला सवाल ये है। दूसरा ये कि क्या लोग मुकम्मल तौर पर जो अपने घर छोड़ के कैंपों में आए थे वो वापस चले गए हैं, या अभी भी कुछ कैंप हैं वहां पर जहाँ पे लोगों को रहना पड़ रहा है? अपडेट क्या आपके पास? अच्छा मारिया, सूरत हाल कुछ इस तरह है कि सैलाबी रेला तबाही और बर्बादी बर्पा करने के बाद मुल्तान सिटी, सदर और शीराबाद की हदूद से मुकम्मल तौर पर बाहर निकल चुका है। अलबत्ता जलालपुर पीरवाला के कुछ इलाकों में अभी भी सूरत हाल तशवीशनाक और परेशान कुन है, और 15 से 20% इलाके ऐसे हैं जहाँ पर सैलाब का पानी मौजूद है और लोगों को मुश्किलात और परेशानी का सामना है। और वहाँ पर हुकूमत की जानिब से कैंप्स और खैमा बस्तियाँ भी कायम की गई हैं। 2 खैमा बस्तियाँ हैं जहाँ पर 2000 से ज़ायद लोग रिहाइश इख्तियार किए हुए हैं। दूसरी जानिब वो लोग जो अपने घरों में जा चुके हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनकी मसाइब और तकलीफ कम नहीं हुई हैं क्योंकि उनके नुकसानात का अभी तक अजाला नहीं हो सका है। वो लोग अभी भी अपने टूटे हुए घरों में बैठे हैं, उनकी जो घर की दीवारें हैं, जो छतें हैं वो गिर चुकी हैं और उनके जो जानवर हैं वो पानी में बह चुके हैं। और वो एक ही मुतालबा कर रहे हैं कि उनके नुकसानात का अजाला किया जाए, लेकिन उनके नुकसानात का अजाला उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से ज़िला मुल्तान के तमाम मुआवज़ात का सर्वे मुकम्मल नहीं कर लिया था। तो ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि सर्वे किया जा रहा है, 87 टीमें तश्कील दी गई हैं और कोशिश की जा रही है कि जल्द अज जल्द सर्वे मुकम्मल किया जाए और लोगों को जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वो भी फराहम की जा रही हैं। लेकिन ओवरऑल सूरत हाल यह है कि लोग परेशान हैं, मसाइब और तकालीफ में घिरे हुए हैं। उनका यही मुतालबा है कि सर्वे जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए, क्योंकि अगर सर्वे मुकम्मल होगा तो उनको जो उनके नुकसानात का है वो अजाला होगा और उसके बाद ही जो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सड़कें टूटी हुई हैं, जो गली महलों में जो नुकसानात हुए हैं, उनका अजाला मुमकिन हो सकेगा। तो लोग परेशान हैं, हुकूमत की जानिब मदद के लिए देख रहे हैं। लेकिन अभी जैसे आप कह रहे हैं कि लोग इंतजार कर रहे हैं कि, लेकिन आगे से इंतजामिया कहती है सर्वे मुकम्मल होगा। जब सर्वे की मुकम्मल होने की बात करें तो हम किस टाइमलाइन की बात देखिए, सर्दियां भी आने वाली हैं, तो कितने वक्त में सर्वे मुकम्मल होगा? क्या रियलिस्टिक टाइमलाइन है कि ये लोग वापस जा सकेंगे अपने अपने इलाकों में जो यहाँ पे कैंप्स में रहते हैं? आज ही मारिया 15 दिन हो गए हैं, अभी तक सिर्फ 30 मुआवज़ात का सर्वे मुकम्मल किया गया है जो ज़िला इंतज़ामिया के तर्जुमान के मुताबिक। तो उनका कहना है कि 30 अक्टूबर तक डेडलाइन है और कोशिश की जाएगी कि 30 अक्टूबर तक ये सर्वे मुकम्मल कर लिया जाए। लेकिन जिस सुस्त रफ्तारी के साथ ये सर्वे किया जा रहा है तो ये मुश्किल दिखाई दे रहा है और लोगों का भी बार बार सिर्फ एक ही मुतालबा है कि जल्द से जल्द सर्वे मुकम्मल किया जाए ताकि उनको रिलीफ मिल सके। जी। और वहाँ पे जो खाने पीने की अशिया है उनकी कीमतों के हवाले से बताइए, क्या बढ़ी हैं? क्योंकि एक फूड सिक्योरिटी क्राइसिस का भी बार बार जिक्र कर रहे हैं, तो कीमतों की अशिया अभी स्टेबलाइज हैं, बढ़ी हैं, क्या सूरत हाल है मुल्तान शहर?
अच्छा, ओवरऑल तो जो कीमतें हैं वो स्टेबलाइज हैं। अलबत्ता टमाटर या कोई एक इक्का दुक्का कोई 2-3 सब्जियां हैं जिनकी कीमतें गुज़श्ता 4-5 दिन से या 15 दिन से आप कह सकते हैं कि जिनकी कीमतों में इजाफा हुआ है। ओवरऑल किसी किस्म की किल्लत नहीं है अशियाए खुर्दनोश की, और कीमतें भी ज्यादा नहीं बढ़ी। ओके, ग्रेट। शहजाद आलम साहब, ये सवाल जो खाने पीने के जो वहाँ पे खास तौर पे सूरत हाल है उससे बताइए, क्या चीज़ों की कीमतें बढ़ी हैं? बिकॉज बहुत सारे लोगों का ये कंसर्न है। दूसरा, सर्दियाँ तो बिल्कुल आई खड़ी हैं खास तौर पे स्वात जैसे इलाके के अंदर, तो आपको वहाँ के शहरी क्या इस मरतबा सर्दियाँ अपने घरों में अंदर अपनी छतों के नीचे गुजारेंगे या मुश्किल लग रहा है कुछ खानदानों के लिए आपको? हमारे यहाँ इस वक्त जब मैं जिस मुकाम पर खड़ा हूँ इस वक्त भी यहाँ पर शदीद बारिश हो रही है, और बाले इलाकों कालाम, महोडन और दीगर इलाकों में आज बर्फबारी हुई है, जिसके बाद सर्दी की शिद्दत निहायत ही बढ़ गई है, और मिंदौरा शहर समेत जो मुतासिरीन सैलाब है उनकी मुश्किलात भी बढ़ गए हैं। अगर बात की जाए अशियाए खुर्दनोश की, तो आज मिंदौरा शहर में टमाटर तकरीबन 300 रुपए फी किलो बिक रहा था, जबकि सैलाब से पहले यही टमाटर 30 से 40 रुपए किलो बिकता था, जबकि आलू की कीमत आज 100 रुपए फी किलो थी, और प्याज की कीमत 180 से 200 रुपए तक पहुंच चुकी थी। तो जो कीमत है उसमें बेतहाशा इजाफा हुआ, और अब तक जो मुतासिरीन सैलाब है जिन मकानात या दुकानों में पानी जमा हुआ था, जिसमें दाखिल हुआ था, तो तकरीबन 10,000 तक की जो दुकानें हैं अभी तक उसका सर्वे मुकम्मल नहीं किया जा सका है, जिसकी वजह से जो मुतासिरीन सैलाब है या जो दुकानदार है, जो ताजिर बरादर है, तो उनका कारोबार भी काफी हद तक मुतासिर हुआ है। जी शौकत साहब, आपके इलाके के अंदर खास तौर पे आपने कहा कि वहाँ किल्लत नहीं है, लेकिन कीमतों की क्या सूरत हाल है वहाँ पे खाने पीने की, जो ये खास तौर पे जो फूड बास्केट से ताल्लुक रखती हैं चीजें, टमाटर, प्याज, आलू? जी बिल्कुल, जो मेरे भाई शहजाद आलम साहब ने कहा है, तो इस तरह के की बड़ी सूरत हाल है। यहाँ पर ये है कि आटा का बड़ा मसला है, आटा और चीनी के कीमत में भी इजाफा हो गया है। यहाँ पर जो मुतासर इलाके हैं इसमें चकर्दे का जो दूसरा इलाका मुतासर था बिशोने से तकरीबन 50 किलोमीटर के फासले पे है, यहाँ पर 3 घंटे लगता है। इस तरह की दूसरे इलाके 3-4 मुकाम पे जो हमारा इधर बिजली गिर गई थी, तो ये मुतासर इलाके में है, तो इस वजह से एक दूसरे से बहुत दूर है। तो खासकर अगर यहाँ पर जो सड़क की बहाल हो जाए और बिजली की बहाली हो जाए तो लोगों की मुश्किलात में थोड़ी सी कमी आ सकती है। बहुत शुक्रिया राना।